السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ برق سکونیات، یہ چیپٹر ہمارا آلریڈی شروع ہے۔ اس میں اگلے ٹاپکس آج ہم دیکھنے والے ہیں۔ آج کے اس لیکچر کے اندر لیکچر نمبر ہے 8.08۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ الیکٹروسٹیٹکس میں اگر ہم 4 چارجز کو لیں اور یہ چاروں بھی چارجز اگر کسی اسکوائر کے کارنرز پر رکھے جائیں تو اس سسٹم کا ٹوٹل جو ہے تو پوٹینشیل انرجی اس سسٹم کی کیا ہوں گی، یہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ اور یہ ایک ایگزامپل کے طور پر جو ہے تو ہمیں دیکھنا ہے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اگر کئی چارجز کا کلیکشن ہو، فار ایگزامپل بہت سارے پازیٹیو چارجز کو اگر کسی جگہ پر جمع کیا جائے تو ان چارجز کی وجہ سے جو پوٹینشیل انرجی حاصل ہوتی ہے، اس پوٹینشیل انرجی کے لیے فارمولا جو ہے تو ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈیرائیو کیا ہے، اور وہ فارمولا اس طرح تھا: U is equal to U means potential energy, it is equal to 1/4 pi epsilon 0 summation Qj into Qk upon distance between two charges R, J, K۔ تو یہ جو فارمولا ہے پوٹینشیل انرجی کے لیے فار اے سسٹم آف n چارجز، یہ آلریڈی یہ فارمولا ہم دیکھ چکے۔ اب یہ فارمولے کو جو ہے تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو ہے تو ہم ایک ایگزامپل جو ہے، ایگزامپل کے تھرو جو ہے تو سمجھیں گے کہ اگر 4 چارجز ہیں، فار ایگزامپل اس کی ڈائیگرام ہم ایسے بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی اسکوائر کو جو ہے تو سپوز ہم نے کنسیڈر کیا، اور یہ جو اسکوائر ہے، اس اسکوائر کے جو ہے تو ہم چاروں جو پوائنٹس ہے وہ لے لیں گے، سپوز A, B, C اینڈ D، اور چاروں بھی پوائنٹس پر جو ہے تو چارجز ہم رکھیں گے۔ A پوائنٹ پر جو چارج رکھا گیا ہے وہ ہے +Q، B پر چارج رکھیں گے +Q، C پر رکھیں گے -Q، اور اسی طرح سے D پر -Q چارج رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو اسکوائر ہے، اس اسکوائر کی جو لینتھ ہے وہ سپوز اسمال r ہے، تو سبھی سائڈس جو رہیں گے اس کے، وہ اس کی لینتھ جو ہے وہ اسمال r رہیں گی۔ اب یہاں پر اس کے جو ڈائیگونل ہے AC اور BD، یہ ڈائیگونل سب سے پہلے ہم معلوم کریں گے یہ ڈائیگونل کی لینتھ کتنی ہے۔
सपोज यहाँ पर जो डायगोनल हमने ड्रॉ किए, जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो डायगोनल है इनकी लेंथ AC और BD ये हम मालूम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल को देखें, यहाँ पर जो ट्रायंगल है हमारे पास ADC, ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसका जो वित्र है वो AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बाकी जो दोनों साइड्स है उनकी लेंथ R है, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इट इज इक्वल टू ट्वाइस R स्क्वायर। दोनों साइड का हम रूट लेंगे, देयरफॉर AC इज इक्वल टू रूट ट्वाइस R स्क्वायर, और ये हमको मिलेगा AC इज इक्वल टू √2R। तो यहाँ पर √2R जो है इट इज द लेंथ ऑफ AC डायगोनल। √2R आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा डायगोनल इसका मालूम करें BD, तो वो भी इसी मेथड से हम मालूम कर सकते हैं और वो रहेगा √2R, सेम उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर जो आपको चार्जेस नज़र आ रहे, पॉइंट A पर प्लस Q है और B पर प्लस Q चार्ज है। ये दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी, सबसे पहले वो पोटेंशियल एनर्जी जो है तो हम मालूम करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू चार्जेस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे UAB से। इट इज़ इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है तो जनरल फार्मूला जो है तो ये अभी हमने यहाँ पर देखा समेशन के फॉर्म में। इस फार्मूले के मुताबिक जो है तो ये पोटेंशियल एनर्जी को लिखना है और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पॉइंट A पर जो चार्ज है वो Q है और B पर जो चार्ज है वो भी प्लस Q है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम स्मॉल r। तो ये पहली पोटेंशियल एनर्जी जो है हमको हासिल हुई, जो A और B पॉइंट्स पर रखे गए चार्जेस के बीच में रहेंगी। दूसरी हम मालूम करेंगे B एंड C ये पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पॉइंट्स B and C, it is equal to, according to formula, 1/4 pi एप्सिलॉन 0। B पर चार्ज है Q और C पर चार्ज है -Q, अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब C और D के लिए पोटेंशियल एनर्जी for the charges placed at C and D, CD, it is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन 0। C पर चार्ज है -Q और D पर चार्ज है -Q, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल r। इक्वेशन नंबर 3। डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस स्मॉल r रहेगा सिर्फ। अब यहाँ पर D और A के लिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर DA, इट इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0, D पर चार्ज है -q और A पर चार्ज है +q अपॉन डिस्टेंस है स्मॉल r। ये यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन हमको मिली। अब डायगोनली अपोजिट जो चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते A और C पर जो चार्जेस रखे गए हैं उन दोनों के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी वो हम मालूम करेंगे। इसी तरह से B और D पर जो चार्जेस है उनके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर जो डायगोनली अपोजिट चार्जेस है उनके लिए भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। UAC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। A पर चार्ज है Q और C पर चार्ज है -q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, वो अपन ने पहले ही निकाल चुके थे यहाँ पर, और वो डिस्टेंस है √2 × r। ये फिफ्थ इक्वेशन आ गई हमारी। और अब जो दूसरा डायगोनल है B और D, उसके लिए मालूम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर BD। इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। B पर क्या चार्ज है? +q है। D पर चार्ज है -q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम √2 × r। ये सिक्स्थ इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमको पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, तो ये जितनी भी 6 पोटेंशियल एनर्जीज हमने अभी निकाले, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इन सारी 6 एनर्जीज को हम ऐड करेंगे तो इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी हमको मिलेंगी। देयरफॉर U इज इक्वल टू, हर टर्म के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इट इज़ कॉमन इन ऑल द 6 इक्वेशंस। अब अंदर जो बचता है ब्रैकेट में वो हमको लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 को आप देखिए, Q × Q मीन्स Q²/r। यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q²/r। दूसरी इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन पर से होगा -Q²/r, -Q²/r। थर्ड इक्वेशन देखिए आप, माइनस और माइनस प्लस होगा, +Q²/r। फोर्थ इक्वेशन -q × +q, ये होगा -Q²/r। फिफ्थ इक्वेशन में फिर से माइनस मिलेगा, -Q²/√2r। एंड द लास्ट सिक्स्थ इक्वेशन -Q²/√2r। तो जितने भी 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे, ये सारे 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए जो है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पर हासिल कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको रीराइट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q²/r ये प्लस का है, और दूसरा सेकंड टर्म सेम है लेकिन माइनस का है, ये दोनों कैंसिल होंगे। इसी तरह से ये दोनों टर्म भी कैंसिल होंगे, और लास्ट के दोनों टर्म बचेंगे, और दोनों टर्म सेम है, सिर्फ माइनस है, तो इनको ऐड करेंगे यहाँ पर।
U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ब्रैकेट में ये दोनों टर्म्स का एडिशन होगा और जो साइन रहेंगी वो माइनस की रहेंगी, -2q² अपॉन √2r। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर में 2 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 जो है ये 2 के इक्वल होता है, और q² जो है वो एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर, इंटू q² अपॉन डिनोमिनेटर में है हमारे पास √2r। अब यहाँ पर क्या कैंसिल हो सकता है, √2 कैंसिल हो सकता है, एक क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, अब ये माइनस जो है तो हम पहले लिख सकते हैं, -√2q², ये है हमारे पास न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा हुआ है अभी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये 4 पार्टिकल सिस्टम के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इतनी होगी, उसके लिए जो है तो फार्मूला हमने यहाँ पर डिराइव किया। और ये चारों भी चार्जेस जो है तो किसी स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर रखे गए हैं, तो उनके लिए जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होंगी वो इतनी होगी। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट था हमारा वो अभी हमने कंप्लीट किया, एग्जाम्पल सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। इसके बाद हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब हम जो दूसरा पॉइंट है वो देखेंगे कि एक्सटर्नल फील्ड में जो है तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो हमें देखना है। सपोज यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के करीब जो है तो हम किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब ला सकते हैं। सपोज ये जो Q0 चार्ज है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और यहाँ पर ये Q चार्ज है, इस Q चार्ज का जो है तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस Q चार्ज की वजह से है। और अब इस Q0 चार्ज पर कुव्वत लगाकर जो है तो हम इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नुक्ता P पर लाकर रखेंगे और फर्ज करेंगे कि यहाँ पर इस नुक्ता P का जो पोजीशन वेक्टर है वो r है। तो r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P। जब Q0 को लामहदूद फासले से इस नुक्ता P पर दूसरे किसी बरकी बार के यानी Q बरकी बार के बरकी मैदान में लाया जाता है तो इस Q0 पर वर्क होता है और ये वर्क जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर जो है तो जमा रहता है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हमको हासिल होंगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जो फार्मूला हमने डिराइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0
अपॉन आर, इतनी पोटेंशियल एनर्जी जो है तो हमको हासिल होंगी। और इस पोटेंशियल एनर्जी को जो है तो हम U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो रहेंगी एक्चुअल में ये वर्क डन रहेगा जो Q0 चार्ज पर होगा। तो Q0 चार्ज पर जो वर्क डन होगा उसको पॉइंट P तक लाने के लिए इट इज़ स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस चार्ज की वजह से ही था। अब यहाँ पर सिर्फ प्लस Q चार्ज था, अब Q0 चार्ज भी यहाँ पर आ गया प्लस Q0। अब यहाँ पर दो चार्जेस हो गए और अब इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हासिल होगा। अब कोई तीसरा चार्ज सपोज Q डैश प्लस Q डैश, इस चार्ज को अगर हम यहाँ तक लाना चाहें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो फिर से इस Q डैश चार्ज पर कुछ वर्क करना होगा और वो वर्क इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर होगा। तो यहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सिर्फ इन चार्जेस की वजह से ही था। यानी हमें यहाँ पर मालूम था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ड्यू टू द चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो हमको यहाँ पर मालूम था। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो चार्जेस खुद थे। इन चार्जेस की वजह से ही जो है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ था। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है तो हम किसी नए बरकीबार को लामहदूद फासले पर से जब लाएंगे तो उस पर वर्क डन होगा। अगर इसी तरह से हम यूनिट चार्ज को अगर हम लामहदूद फासले पर से लाएं, फॉर एग्जांपल प्लस 1 कूलम चार्ज को अगर यहाँ पर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं, सपोज यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कुछ चार्जेस मौजूद है Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, ये चार्जेस यहाँ पर ऑलरेडी है और इन चार्जेस की वजह से इन खुद चार्जेस का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लामहदूद फासले से जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया जाता है तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो वर्क होगा उसे पोटेंशियल कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। और अगर आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी PE इज इक्वल टू 1/4πε0। सपोज यहाँ पर टोटल चार्जेस जो है तो वो Q है और जिस चार्ज को लाया जा रहा है वो 1 है प्लस 1 कूलम है अपॉन the position vector of this point P is suppose R. So this will be the potential energy and it is nothing but a potential. It is equal to V. क्योंकि V का फॉर्मूला आपको मालूम है 1/4πε0 Q upon R. It is called potential. Therefore, in case of a unit positive charge, potential energy is equal to potential developed on that charge. तो यहाँ पर जितने भी सिस्टम ऑफ चार्जेस थे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको हासिल हुआ और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है तो हमने किसी थर्ड चार्ज को लामहदूद फासले पर से उस सिस्टम के अंदर लाने की कोशिश किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं
اس کے اندر ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ جو الیکٹرک فیلڈ رہے گا، جس الیکٹرک فیلڈ میں چارج کو لایا جائے گا، اس الیکٹرک فیلڈ کے سورس کا پتہ ہمیں نہیں رہے گا. سورس جو ہے اس کا وہ ہمیں معلوم نہیں رہے گا. سورس از unknown. یا پھر یہ سورس ہم کو معلوم بھی ہو سکتا ہے. دونوں بھی باتیں اس کے اندر ہو سکتی ہے. جو الیکٹرک فیلڈ ہم یہاں پر لیں گے، سپوز یہ کوئی الیکٹرک فیلڈ ہے اور اس الیکٹرک فیلڈ کے اندر ہمیں کسی چارج کو لانا ہے، اور یہاں پر کوئی چارج ہے Q پلس Q چارج، جو کہ انفائنائٹ ڈسٹینس پر رکھا ہوا ہے. یہ چارج انفائنائٹ ڈسٹینس پر رکھا ہوا ہے. اب اس الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ پوٹینشیل رہے گا. سپوز اس الیکٹرک فیلڈ کے اندر ہم نے کوئی ایک پوائنٹ کنسیڈر کیا، یہاں پر ایک پوائنٹ ہم نے کنسیڈر کیا، اور یہ پوائنٹ ہے P، اور اس پوائنٹ P پر اگر آپ پوٹینشیل معلوم کرنا چاہے تو اس پوائنٹ P پر پوٹینشیل رہے گا V، اور اس پوائنٹ کا جو پوزیشن ویکٹر رہے گا وہ رہے گا ویکٹر R. اب یہ کسی نہ کسی ریفرنس پوائنٹ کے لحاظ سے اس پوزیشن ویکٹر کو لیا جائے گا. فار ایگزامپل یہاں پر کہیں نہ کہیں جو ہے تو ایسا ایک کوآرڈینیٹ سسٹم ہوگا، اور وہاں پر کوئی اوریجن ہوگا، اور اوریجن کے لحاظ سے یہ جو پوائنٹ ہے یہ اسمال r ڈسٹینس پر ہوگا. تو according with respect to this origin, suppose the position vector of this point P is r. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہم نے الیکٹرک فیلڈ لیا، اور اس الیکٹرک فیلڈ میں کوئی ایک نقطہ لیا P، اور اس نقطہ P پر جو پوٹینشیل رہے گا وہ ہم نے ایزیوم کیا کہ اس نقطہ P پر جو پوٹینشیل رہے گا وہ V رہے گا، اینڈ R is the position vector of that point P. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو پلس Q چارج رکھا ہوا ہے انفائنائٹ ڈسٹینس پر، اس کو ہمیں اس الیکٹرک فیلڈ کے اندر پوائنٹ P پر لانا ہے. تو یہاں سے اس کو حرکت دے کر اس چارج کو ہم اس پوائنٹ P پر لا کر رکھیں گے. اب یہاں پر آلریڈی الیکٹرک فیلڈ ہے. یہ الیکٹرک فیلڈ کا سورس کیا ہے، یہ الیکٹرک فیلڈ کہاں سے آیا اور اس کا اورینٹیشن کیسا ہے وغیرہ، یہ ہم کو معلوم ہو بھی سکتا ہے اور معلوم نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اتنا تو ضرور کنفرم ہے کہ یہاں پر کوئی ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ لگایا گیا ہے. واٹ از مین بائی ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ؟ یہاں پر جو پہلے کیس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو سسٹم آف چارجز تھا، ان چارجز کی وجہ سے اپنا خود کا الیکٹرک فیلڈ حاصل ہوا تھا. لیکن اب یہاں پر جو الیکٹرک فیلڈ حاصل ہوا یہ کسی چارجز کی وجہ سے حاصل نہیں ہوا، یہ باہر سے الیکٹرک فیلڈ کو اپلائی کیا گیا. اور آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونا چاہیے کہ جب لامحدود فاصلے سے کئی چارجز کو لا کر اس الیکٹرک فیلڈ میں رکھا جائے گا تو ان چارجز کا ایفیکٹ اس ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ پر نہیں ہوگا، کیونکہ جو پلس Q چارج کو ہم انفائنائٹ ڈسٹینس سے لا کر یہاں نقطہ P پر رکھیں گے تو پلس Q چارج is very very small as compared to the external electric field. Therefore, the plus Q charge will not affect the external electric field at all. تو یہاں پر
یہ جو ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ ہے اٹ از انڈیپینڈنٹ آن دا کلیکشن آف دا چارجز اور دا سسٹم آف چارجز وچ وی آر برنگنگ فرام انفینٹی. اب یہاں پر اس پلس کیو چارج کو ہم نے لا کر اس نقطہ پی پر رکھ دیا تو پلس کیو چارج پر جو ہے تو ورک ہوگا، اس پلس کیو چارج پر ورک ہوگا اور یہ ورک جو ہے اس میں ایز اے پوٹینشیل انرجی جمع ہوگا. تو اب وہ پوٹینشیل انرجی کیا ہوں گی؟ پوٹینشیل انرجی از اکول ٹو پوٹینشیل. پوٹینشیل جو ہے تو اس پوائنٹ پر V ہے اور R جو ہے تو اس کا پوزیشن ویکٹر ہے اس پوائنٹ کا. پوٹینشیل انٹو چارج، جس چارج کو لایا جائے گا انفائنائٹ ڈسٹینس سے اس سے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے. تو اب یہاں پر یہ جو فارمولا ہم کو حاصل ہوا یہ پوٹینشیل انرجی کے لیے فارمولا رہے گا. ایک پوٹینشیل انرجی کے لیے فارمولا ہم کو یہاں پر حاصل ہوا تھا اس طرح کا، آپ اس کو دیکھ سکتے یہاں پر یہ پوٹینشیل انرجی کا فارمولا تھا اور یہاں پر دو چارجز تھے، سسٹم آف چارجز جو سسٹم تھا چارجز کا اس میں دو چارجز تھے اور انہی کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ حاصل ہوا تھا اور انہی کی وجہ سے پوٹینشیل انرجی حاصل ہوئی. لیکن اب جو یہاں اس کیس میں جو ہم کو پوٹینشیل انرجی حاصل ہوئی تو یہاں پر اس جگہ پر جو پوٹینشیل انرجی ہمیں حاصل ہوں گی تو یہ پوٹینشیل انرجی میں جو پوٹینشیل لیا گیا ہے دس پوٹینشیل is due to the external electric field. This potential is not due to the system of charges. جو چارجز ہم اسٹور کرتے جائیں گے یہاں پر لا کر ان کی وجہ سے یہ الیکٹرک فیلڈ نہیں ہوگا اور ان کی وجہ سے یہ یہاں پر پوٹینشیل نہیں ہوگا. یہ پوٹینشیل ایکسٹرنل ہے اور یہ لائے گئے چارجز پر یہ ڈیپینڈ نہیں ہوگا. تو اب آگے جو ہم کیس دیکھنے والے ہیں وہ اسی طرح کا کانسیپٹ ہم دیکھنے والے ہیں کہ جو الیکٹرک فیلڈ رہے گا وہ بیرونی الیکٹرک فیلڈ رہے گا، نہ کہ ان چارجز کی وجہ سے حاصل ہونے والا الیکٹرک فیلڈ ہوگا. تو اب آپ کو دو چیزیں یہاں پر یاد رکھنا ہے اور وہ دو چیزیں اس طرح ہیں کہ اگر کوئی ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ لیا جائے، اگر کوئی ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ لیا جائے تو اس ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے جو پوٹینشیل انرجی حاصل ہوتی ہے وہ ہوں گی پوٹینشیل انٹو چارج. اور دوسرا کیس مطلب پہلی مرتبہ جو ہم نے شروعات میں دیکھے وہ یہ ہے کہ اگر کلیکشن آف چارجز ہے یا سسٹم آف چارجز ہے اور یہاں پر اب کسی چارج کو لایا جا رہا ہے، Q0 چارج کو لایا جا رہا ہے اور یہاں پر جتنے بھی چارجز ہیں یہ ٹوٹل چارج یہاں پر ہے Q. تو اب اس کیس میں جو پوٹینشیل انرجی ہوں گی وہ ہوں گی پوٹینشیل انرجی از اکول ٹو 1/4 پائی ایپسلون 0 Q انٹو Q0 اپون R. اتنی پوٹینشیل انرجی ہوگی. تو یہ دونوں کیسز جو ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایکسٹرنل فیلڈ کی وجہ سے پوٹینشیل انرجی کتنی ہوں گی اور سسٹم آف چارجز کی وجہ سے جو فیلڈ تیار ہوگا اس کی وجہ سے پوٹینشیل انرجی کتنی ہوگی. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ potential energy of a single charge in an external electric field. ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ کو اگر اپلائی کیا جائے تو اس کی وجہ سے پوٹینشیل انرجی کتنی ہوں گی آن اے یونٹ چارج اور آن اے سنگل چارج. اور اب
जो नेक्स्ट टॉपिक हमको इसमें देखना है वो है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यानी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाएगा और वहाँ पर अगर दो चार्जेस को हम जमा करें, दो चार्जेस का सिस्टम अगर हम वहाँ पर तैयार करें एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, तो व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब हम एज्यूम करेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है। सपोज यहाँ पर जो है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया, ये एरो से जो है तो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। और अब एक Q1 चार्ज, ये Q1 चार्ज जो है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट P पर हमें इस चार्ज Q को लाना है। तो सपोज हम इस Q1 चार्ज को लाएंगे इस पॉइंट P पर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा, सपोज वो पोटेंशियल होगा VR1। R1 is the position vector of this point P। ये जो पॉइंट P लिया गया, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है तो रेफरेंस पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं एक ओरिजिन होगा और उस ओरिजिन से और इस ज़ीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट से इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट P का, वो होगा वेक्टर R1। तो क्या किया हमने कि एक एक्सटर्नल फील्ड को यहाँ पर अप्लाई किए और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई P पॉइंट लिए और एज्यूम किए कि उस P पॉइंट पर पोटेंशियल VR1 है। तो यहाँ पर Q1 चार्ज को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाएगा तो Q1 चार्ज पर वर्क होगा और उस वर्क को हम W1 से रिप्रेजेंट करेंगे। W1 ये वर्क डन होगा और ये जो वर्क डन होगा मीन्स इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या ये जो वर्क डन होगा ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से है, तो ये कितना होगा, पोटेंशियल VR1 इंटू Q1 चार्ज, इतना वर्क डन होगा इस Q1 चार्ज पर क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको लाया गया। अब एक दूसरा चार्ज है Q2, ये दूसरा Q2 चार्ज है और ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और इसे हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज इस पॉइंट Q पर लाना है और assuming that the potential at this point Q is VR2, V वेक्टर R2, क्योंकि R2 जो है तो पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट O। ये रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम वेक्टर R2 कहेंगे। अब Q2 को लाना है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर से और कहाँ लाकर रखना है, इसको हमें लाकर रखना है Q पोजीशन पर। तो यहाँ पर Q चार्ज को हम लाएंगे
Q2 चार्ज को हम Q पॉइंट पर लाने वाले हैं, तो यहाँ पर लाकर उसको रखेंगे। तो इस Q2 चार्ज पर वर्क डन होगा, और ये जो वर्क डन रहेगा वो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से भी होगा, और यहाँ पर पहले से जो हमने एक Q1 चार्ज को लाकर रखा था पॉइंट P पर, उस चार्ज की वजह से भी होगा। तो दोनों चार्जेस की वजह से, दोनों चीज़ों की वजह से, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन होगा, और दूसरा जो वर्क डन होगा वो इस Q1 चार्ज की वजह से होगा, जो कि ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, और उस Q1 चार्ज का एक अपना छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पोटेंशियल भी है। तो जब Q2 चार्ज को लाया जाएगा तो दो वर्क होंगे, एक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, तो हम यहाँ पर उसको कैलकुलेट करेंगे। W2 क्या है? Q2 चार्ज की वजह से या Q2 चार्ज पर होने वाला काम, Q2 पर होने वाला टोटल वर्क डन। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कितना वर्क होगा, तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो होता है वो रहेगा पोटेंशियल V, और इसका पोजीशन वेक्टर है R2, VR2, एंड मल्टीप्लाई इट बाय चार्ज Q2 चार्ज। दिस इज द वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो Q1 चार्ज वहाँ पर पहले से मौजूद है, और दूसरा चार्ज Q2 भी आ गया पॉइंट Q पर, और Q1 और Q2 का दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हम एज्यूम करेंगे इट इज़ R12। अब ये टू पार्टिकल सिस्टम हो गया हमारे पास। यहाँ पर चार्ज है Q1 और यहाँ पर चार्ज है Q2। टू पार्टिकल सिस्टम है, तो टू पार्टिकल सिस्टम की वजह से जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन द सेंस पोटेंशियल एनर्जी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी इस दो चार्जेस की वजह से वो होंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस R12। तो यहाँ पर आप देख रहे कि जो पहला चार्ज जब लाया गया तो जो वर्क डन हुआ वो इक्वेशन नंबर 1 है, ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि शुरुआत में तो वहाँ पर कोई दूसरा चार्ज नहीं था कि जिसकी वजह से पोटेंशियल हासिल हो और पोटेंशियल एनर्जी हासिल हो। लेकिन जब दूसरा चार्ज लाया गया तो दूसरे चार्ज की वजह से जो वर्क डन हुआ वो इक्वेशन नंबर 2 से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो अब जो टू पार्टिकल सिस्टम या टू चार्जेस का जो सिस्टम यहाँ पर तैयार हुआ इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल वर्क डन फिर वहाँ पर क्या होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ये टोटल वर्क डन होगा इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल वर्क डन हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इट इज इक्वल टू W1 की वैल्यू है हमारे पास VR1 Q1 प्लस W2 है हमारे पास VR2 वेक्टर चार्ज Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये होगा टोटल वर्क डन अगर दो चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन डिराइव किया गया है नोट्स के अंदर, तो यहाँ पर ये पहले चार्ज की वजह से वर्क डन है और दूसरे चार्ज की वजह से दो वर्क डन हमको हासिल हुए। इन सब को हमने ऐड कर दिया और इस तरह से टोटल वर्क डन जो है तो हमें हासिल होगा। तो यहाँ पर तीसरा टॉपिक जो था हमारा आज का वो हमने कंप्लीट किया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। और अब लास्ट टॉपिक जो हमें देखना है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यानी अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा और वहाँ पर एक डाइपोल को रखा जाएगा और उस डाइपोल की वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हासिल होती है वो हमें देखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते नोट्स के अंदर, बैरूनी बरकी मैदान में बरकी दो कुतुब की तवानाई बिल कवा के लिए ज़ाब्ता हासिल कीजिए। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जितने भी आपको पैरेलल लाइंस नज़र आ रही है और यहाँ पर एरोज लगे हुए हैं इन पर, तो ये सब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया और उस फील्ड के अंदर जो है तो एक डाइपोल को रखा गया। आपको मालूम है कि डाइपोल किसे कहा जाता है। डाइपोल जो है तो दो चार्जेस लिए जाते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड यकसां होती है लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा और इन दोनों को एक दूसरे से कुछ फासले पर रखा जाता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ, ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और सपोज उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस एल डिस्टेंस उनके दरमियान का लिया गया है। अब ये जो डाइपोल है जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे, इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। तो क्या होगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो इन चार्जेस पर एक्ट होंगी। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है तो इस पर एक्ट होंगी। जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होंगी वो होंगी Q इंटू E। यहाँ पर जो फोर्स एक्ट होंगी F इज इक्वल टू Q इंटू E, इतनी फोर्स यहाँ पर एक्ट होंगी। और जो निगेटिव चार्ज है उस पर भी उतनी ही फोर्स एक्ट होंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि माइनस Q इंटू E इतनी फोर्स एक्ट हो रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स एक्ट हो रही है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल एक्ट ऑन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ डाइपोल। तो आप कह सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2, इस तरह की ये फोर्सेस होंगी। तो आपको ये भी बात मालूम है कि जब कुछ लंबाई वाली शय के दोनों सिरों पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब एक्ट होती है तो उस शय के अंदर जो है तो रोटेशन होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर का सिरा जो है प्लस क्यू, उस पर दाईं जानिब से कुव्वत एक्ट कर रही है, दाईं जानिब कुव्वत एक्ट होंगी
اور جو مائنس کیو چارج ہے اس پر بائیں جانب قوت ایکٹ ہوگی. ایز اے ریزلٹ دا ڈائپول ول روٹیٹ. اب ڈائپول روٹیٹ ہوگا. سپوز الیکٹرک فیلڈ سے اس نے جو ہے تو تھیٹا اینگل جو ہے تو بنایا. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈائپول نے جو ہے تو تھیٹا اینگل بنایا الیکٹرک فیلڈ سے. ایکول اینڈ اپوزٹ فورسز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹارک حاصل ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ٹارک حاصل ہوگا اس کو ہم ٹا سے ریپرزینٹ کریں گے. ٹا از اکول ٹو, اس کا فارمولا آپ کو یاد رکھنا ہے, اٹ از اکول ٹو ڈائپول مومنٹ انٹو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی. اب یہاں پر ڈائپول مومنٹ جو ہے تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈائپول مومنٹ ہم نے اس کے پہلے ہی دیکھا کہ چارج ملٹیپلائڈ بائی دا ڈسٹینس بٹوین ٹو چارجز, Q انٹو ٹوائز L, یہ ہوتا ہے ڈائپول مومنٹ. تو اب یہاں پر ٹو ایکول اینڈ اپوزٹ فورسز اینڈ پوائنٹس پر ایکٹ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم کو کیا حاصل ہوا, ٹارک حاصل ہوا. اسے اردو میں گردشہ کہا جاتا ہے. اور یہ گردشے کا فارمولا آپ کو یاد رکھنا ہے, ڈائپول مومنٹ انٹو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی. اور ڈیفینیٹلی یہاں پر یہ کراس پروڈکٹ ہے. اگر ہم اس کا میگنیٹیوڈ معلوم کرنا چاہیں تو ٹا از اکول ٹو پی ای انٹو سائن تھیٹا. یہاں پر سائن تھیٹا حاصل ہوگا. اور تھیٹا جو ہے تو ڈائپول کے ایکسس کا الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی سے بننے والا ایک اینگل ہے جسے ہم تھیٹا سے ریپرزینٹ کریں گے. تو یہاں پر ہم نے ٹارک معلوم کیا, لیکن ہم کو ٹارک نہیں, ہم کو ورک ڈن معلوم کرنا ہے کہ ورک ڈن کتنا ہوگا. اب الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے تو ڈائپول روٹیٹ کرے گا, تھیٹا اینگل سے اس نے روٹیٹ کیا, لیکن اس کے اپوز میں, الیکٹرک فیلڈ کے اپوز میں ہم کو فورس لگانا ہے, اور اس فورس کے ذریعے ڈائپول کو روٹیٹ کرنا ہے فرام تھیٹا زیرو ٹو تھیٹا زیرو اینگل سے ہم تھیٹا ڈگری کے اینگل تک ڈائپول کو اس ڈائریکشن میں روٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں پر ہم اپنی طرف سے جو ہے تو ورک کریں گے ڈائپول کے اوپر, اور وہ ورک ڈائپول کے اندر ایز اے پوٹینشیل انرجی جمع ہوگا. تو یہ ورک جو کیا جا رہا ہے, جو ورک ہم اس پر کریں گے, وہ الیکٹرک فیلڈ کی فورس کے اپوز میں کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر ورک ڈن ہم کو معلوم کرنا ہے. تو جو ورک ڈن ہوگا W, وہ ہوگا ٹارک انٹو اینگولر ڈسپلیسمنٹ. یعنی یہاں پر جو ٹارک لگایا جائے گا ہماری طرف سے, ایکسٹرنل ٹارک انٹو, اینڈ ٹارک جو ہے اٹ از دا فنکشن آف تھیٹا. تھیٹا جتنا زیادہ ہوگا ٹارک اتنا زیادہ ایکٹ ہوگا. تو یہاں پر ہم ورک ڈن نکال رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عام طور سے جو ورک ڈن ہم نکالتے, وہ ورک ڈن ہم کیسا نکالتے, ہم ایسا نکالتے, کام برابر قوت ضرب ہٹاؤ ڈی ایکس. تو اب یہاں پر قوت کی جگہ پر آپ کو ٹارک لینا ہے, اور جو خطی ہٹاؤ رہتا تھا اس کی جگہ پر ہم کو زاویائی ہٹاؤ یعنی اینگولر ڈسپلیسمنٹ لینا ہے ڈی تھیٹا. تو اب یہاں پر ٹارک انٹو ڈی تھیٹا, یہ ہوگا ورک ڈن. لیکن ہم کو کہاں سے کہاں تک روٹیٹ کرنا ہے, اس کو روٹیٹ کرنا ہے فرام
theta 0 to theta, then we will get the total work done. अब इसका इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना है. W is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा, और टॉ की वैल्यू हमने जो निकाली यहाँ पर, ये टॉ की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, और वो वैल्यू है P E sin theta and d theta as it is. d theta को हम as it is रखेंगे यहाँ पर. अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन मालूम करने के लिए P और E जो है तो ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स जो है इंटीग्रेशन की, लोअर लिमिट थीटा 0, अपर लिमिट थीटा. अब यहाँ पर लिमिट्स रख देंगे हम. देयरफॉर W इज इक्वल टू PE, सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है, माइनस थीटा की जगह पर थीटा रखना है, माइनस कॉस थीटा, और अब हम खुद से माइनस लेंगे, और एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो वो होगा प्लस. अब थीटा की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे, यानी कॉस थीटा नॉट. प्लस वाले टर्म को हम पहले लिख सकते, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे. PE इन द ब्रैकेट कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा. तो ये वर्क डन होगा जब हम उस डाइपोल को रोटेट करेंगे हमारी तरफ से, उस पर जब वर्क होगा तो वो वर्क हमने अभी कैलकुलेट किया यहाँ पर. अब ये वर्क जो है तो ये वर्क रहेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, यानी Q थीटा नॉट पर जब वो डाइपोल रहेगा तो वहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और जब उसको थीटा पर हम ले जाएंगे तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी. तो W इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन थीटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन थीटा नॉट, and it is equal to dipole moment P, electric field intensity, and bracket as it is cos theta naught minus cos theta. अब यहाँ पर दो केसेस हम जो है तो ले सकते, इस डायग्राम के अंदर जो है तो आप देख सकते. तो अब यहाँ पर हम दो केसेस लेंगे. केस 1 में अगर हम थीटा नॉट इट इज इक्वल टू π/2 ले, तो कॉस π/2 हमारे पास होगा 0, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमको हासिल होंगी वो क्या होंगी. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हमको हासिल होंगी वो होंगी U थीटा इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में कॉस थीटा नॉट यानी कॉस π/2 माइनस कॉस थीटा. इट इज इक्वल टू, ये जो फैक्टर है ये 0 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ माइनस कॉस थीटा, माइनस PE कॉस थीटा. तो उसकी जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी वो इतनी होगी अगर थीटा नॉट π/2 लिया जाए. अगर केस 2 में थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री लिया जाए तब क्या होगा. U थीटा यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल
इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में cos थीटा नॉट मीन्स cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर cos 0 1 होगा, PE 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हासिल होंगी वो इतनी रहेंगी। तो ये दो केसेस जो है हमने यहाँ पर देखे कि इफ़ थीटा 0 चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री to π/2 or 90 degree, then what will be the change in potential energy? तो आज का हमारा ये तीसरा जो टॉपिक था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीसरा भी हमने अभी कंप्लीट किए। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह इसके बाद के लेक्चर्स में आप देखेंगे।